So basically, we are starting with the first question of paper one, which is which are the themes of Quran, and in total we have 15 passages that we need to cover. So initially, I'll prefer that we just cover up the main theme and the importance, because in the papers you'll be required to write main theme and you'll be required to write the importance, right? So you have to write two things for one passage, main theme and importance. But you also have to identify in your paper that which of the particular surahs have been given in the paper, because they're going to mention Arabic and they're going to mention its translation in your paper as well. So what we'll do is first we'll cover up the main theme, we'll cover up the importance, and then when we'll proceed towards the past papers, right after completing this question one, I let you know how to identify these verses, because initially in my slides it will be mentioned that which theme is this, because there are three themes in your Quranic passage. Allah himself, which we are covering right now. Then we have Allah's relation with the creation, and then the third one we have is Allah's relation with messengers. So basically, each theme has five passages that we need to cover. So starting with Allah and Himself, Ayatul Kursi. I hope all of you are aware with Ayatul Kursi, because we recite it very often. It is often used. It is often used in a way that it can protect someone from calamities, and it is also advised to recite Ayatul Kursi right after you complete your namaz. So I believe all of you are aware with Ayatul Kursi, and this is the first passage of Allah in Himself. So basically, the theme of Allah in Himself is about Allah Ta'ala and His oneness, and that there is no partner other than there's no God other than Allah Ta'ala. So these passages mainly focus on the concept of Tawheed, all right? So the main theme of Ayatul Kursi is oneness of Allah Subhanahu wa Ta'ala, which is Tawheed, and it is also one of the pillars of Islam, and that Allah Ta'ala is the creator of everything in the heavens and the earth, and then He's the everlasting, and sustainer, and the self-subsisting, and all the creations are dependent upon Him, but He is independent, right? We are dependent on Allah Ta'ala, but He is not dependent upon us. He does not need our worship, but we need to worship Him, because at the end it is going to be beneficial for us. So Allah Ta'ala does not have any human qualities. He does not sleep. He does not get tired in whatever he does, because all of these qualities are human based. Like we need to sleep after like 8 hours, after 12 hours, we need sleep, right? And then everything in the universe is His kingdom, and under His supreme power and authority, His knowledge is limitless. So, what do you understand by this term? His knowledge is limitless. What is meant by knowledge being limitless? Can someone explain this? Ibrahim, Fatma, Ishan. What I understood is that Allah subhanahu wa ta'ala knows everything and about whatever is going on with our lives or with the world or whatever is going through our mind or in our heart. So his knowledge is limitless and it has no limit. Exactly. And humans only know what He allows them. So there is one incident of Hazrat Adam alayhi salam, that when he was created, he knew the names of everything around him, right? And when he was asked to label them, when he was asked to name all those items, he was aware of the names. So who taught the names of those things to Sayyidina Adam alayhi salam? It was Allah Ta'ala. So it is completely dependent. We are completely dependent upon Allah Ta'ala for the knowledge He has given to us, because His knowledge is limitless, but we are not aware of the things, right? So it is Allah Ta'ala who is allowing us to know things around us, who is allowing us to gain knowledge, who is allowing us to grab the concepts that we are being shared, right? And His throne is understood as His majesty, uniqueness, knowledge, and having total power. It emphasizes how He is the only one who can make decisions about His creation, yet is transcendent, completely independent from His creation, and He has the highest authority. So basically, what this means is that
Allah Ta'ala is the supreme being. He is our majesty. We have to obey him, and he does not have inhuman qualities like we do, and his knowledge is limitless because हमें जो चीजें पता होती हैं वो हमें हमारी वजह से नहीं पता होती, वो अल्लाह ताला का करम होता है कि हमें चीजें पता चलती हैं, वो हमें नॉलेज आती है। और बेसिकली वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस इज कि हमें थोड़ी सी नॉलेज आती है और हम उस पर एरोगेंट हो जाते हैं, राइट? हमें हल्का सा कुछ पता चल जाए और हल्का सा हमसे कोई कुछ पूछ ले तो हमारा एरोगेंस का लेवल आसमान पे चला जाता है कि देखो इसने मुझसे पूछा। तो अल्लाह ताला हु इज द मैजेस्टी, हु इज द सुप्रीम बीइंग, उनको तो सारे जहां की नॉलेज है। ही नोज कि हमारे दिल में क्या है, ही नोज हमारे माइंड में क्या चल रहा है। हमें नहीं पता एक दूसरे के बारे में, बट अल्लाह ताला को सबके बारे में पता है। Yet we are the ones who become arrogant. So it does not befit a believer that we become arrogant after knowing something. या अगर कुछ आ जाए, यूजुअली एक एग्जांपल देती हूँ कि जब कोई बंदा डॉक्टर बन रहा होता है तो उससे आप हल्का सा कुछ पूछ लें तो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंपैशनेट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन दैट वो बहुत एरोगेंस से जो है वो जवाब दे रहे होते हैं और ऐसा फील करवा रहे होते हैं कि देखो इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। स्पेशली एक चीज और स्कूल्स में यू कैन यूजुअली नोटिस कि जो सीनियर्स होते हैं उनका एक अलग लेवल का एरोगेंस होता है कि हमें ज्यादा आता है, जूनियर्स को वो कुछ समझते ही नहीं है। तो दिस इज नॉट द वे दैट अ बिलीवर शुड बिहेव, बिकॉज हमारी नॉलेज अल्लाह ताला की करम से है और अल्लाह ताला अगर हमसे चाहें तो हमारी सारी नॉलेज जो है वो हमसे ले भी सकते हैं, राइट? तो हमें एरोगेंट होना हम पे सूट नहीं करता। एरोगेंस जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट होना चाहिए बिकॉज ही इज द क्रिएटर। उन्होंने सब कुछ बनाया है, हमें बनाया है, दुनिया को बनाया है, यूनिवर्स को बनाया है, उनके पास हर चीज की नॉलेज है। हम जो चीजों को फाइंड आउट करते हैं, हम जिन चीजों पे रिसर्च कर रहे होते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लैक होल के बारे में पता है तो ऑलरेडी ये साइंस हमारे कुरान में मेंशन्ड है, राइट? तो अल्लाह ताला की नॉलेज इज लिमिटलेस एंड इट इज अस जो हमें थोड़ी नॉलेज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहती है। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ आयतुल कुर्सी, that Allah Ta'ala is one and unique, and He does not have any human qualities. He knows everything, nothing is hidden from Him, and the entire universe belongs to Him. We are dependent upon Him, He is not dependent upon us. हमें अगर हमारे सामने खाना भी है, हमारे सामने हमारा रिस्क है, तो वो सब हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से है, हम उन पे डिपेंड करते हैं। ही इज अल राजिक, ही इज नोन एज अल राजिक, इट इज हिज नेम। सो रिस्क देने वाला भी अल्लाह ताला है। वन थिंग दैट इज मेंशन्ड हियर इज कि अल्लाह ताला हैज टोटल पावर, राइट? अल्लाह ताला हैज टोटल पावर्स टू मेक डिसीजंस फॉर अस। देखो, वन थिंग इट इज मेंशन्ड इन कुरान एज वेल दैट ही इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह ताला का प्लान होता है हमारे लिए। तो जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वो बेस्ट प्लान होता है। हम प्लान करते हैं कि हम वो लेवल्स करेंगे, ए लेवल्स करेंगे, अच्छे ग्रेड जाएंगे, फिर हम इस यूनिवर्सिटी जाएंगे, और अगर उस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन नहीं होता तो हमारा दिल टूट जाता है। हमारे अगर ग्रेड्स नहीं आते तो हमारा दिल टूट जाता है कि हमने तो मेहनत की थी पर हमारे ग्रेड्स नहीं आए, हमने तो इस यूनिवर्सिटी जाना था, हम इस यूनिवर्सिटी नहीं जा सके। तो ये सारे प्लान्स अल्लाह ताला के होते हैं। Even the plan of you coming in this world and when you will leave this world, it is also reserved with Allah Ta'ala. हमें नहीं पता कि हमारा डेथ टाइम कब है, हमारे बस में नहीं था कि हम जो है वो पैदा हो सकें, राइट? तो ये अल्लाह ताला का ही डिसीजन था कि इशाल ने, फातिमा ने, इब्राहिम ने, नेहान ने इस दुनिया में आना है। it was written years and years ago, it was already decreed। तो हम डिक्री पे भी बात करेंगे इन आर्टिकल्स ऑफ फेथ, and it is also a very interesting topic. So the basic concept of Ayatul Kursi is कि अल्लाह ताला is the best of planners। तो जो भी प्लान हमारे सामने आता है अल्लाह ताला की तरफ से वो बेस्ट प्लान होता है, और उस पे बजाय रोने के, बजाय उस पे अफसरदा होने के, we need to be acceptive of the decisions that Allah Ta'ala has taken for us, because those are the best decisions। And even from my personal life I can say कि जो decisions मैं लेती थी अपने लिए वो डिसीशंस मेरे लिए इतने फ्रूटफुल नहीं होते, because I think my entire academic journey is a complete plan of Allah Ta'ala। I never planned to take on alma degree, but it was one of the wishes of my grandfather that that I should become an alma।
And right after completing my A levels, I took a gap year. I got admission into Alma degree, and then I started my BTS. Right, like I completed 1 year in Alma degree, and then I switched, and then I like moved to BTS as well. So I'm doing both of them side by side. So this is a complete plan of Allah Ta'ala. I never thought that being a A-star student, I'll take a gap year for me. So gap year लेना ये भी अल्लाह ताला का प्लान था. आलमा डिग्री में आना भी अल्लाह ताला का प्लान था. मेरा इस दुनिया से कब जाना है वो भी अल्लाह ताला का ही प्लान है. आपने इस दुनिया से कब जाना है वो भी अल्लाह ताला का प्लान है. और कितने लोगों ने और पैदा होना है ये भी अल्लाह ताला का प्लान है. और कौन सी किसको डेथ आएगी ये भी अल्लाह ताला का प्लान है. और अल्लाह ताला के पास कोई भी ह्यूमन क्वालिटीज जो हमारी की ह्यूमन क्वालिटीज हैं जो हमें बहुत इंफीरियर बनाती हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इज वे मोर सुपीरियर. So this is the entire main theme, and now moving towards the importance of Ayatul Kursi. मैम Yes. मैम जैसे कितने पॉइंट्स मैक्सिमम लिख सकते हैं पेपर में? Right. देखें, अगर आपने, अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेपर करना है. कैटेगरीज होती है ना, ए स्टार पेपर करना है या ए पेपर करना है. अगर ए स्टार पेपर करना है तो मेरी स्लाइड्स में जितने पॉइंट्स मेंशन्ड हैं वो आप सारे मेंशन करना. वाई? बिकॉज ये सारे पॉइंटर्स जो हैं वो मैंने पास पेपर की मार्किंग स्कीम से ही लिए हैं. ठीक है, तो जब हम मार्किंग स्कीम खोलेंगे तो हमें यही पॉइंटर्स मिलेंगे और इस पे जो है वो आपको मिल जाएंगे. बट अगर आपने एक नॉर्मल एवरेज पेपर करना है तो 4 पॉइंट्स है मोर देन इनफ, क्योंकि वो 4 मार्क्स की मेन थीम होती है और 4 मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है. तो 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंटर्स होना जरूरी है, 4 सेंटेंसेस होना जरूरी है. बट अगर ए स्टार पेपर करना है तो हम सारी चीजें मेंशन करेंगे विद इन द गिवन स्पेस, बिकॉज सीआई के पेपर में स्पेस का बहुत इशू होता है. आपने हर चीज विद इन द स्पेस कंप्लीट करनी होती है. इधर उधर साइडों में लिखते हैं तो वो उनकी स्कैन में नहीं आ रहा होता. ठीक है. एंड रेफरेंसेस, यस, रेफरेंसेस पे भी अभी हम आते हैं, बट इन्हीं के अंदर रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे हमें. बट मेनली जो रेफरेंस आएगा, जो मेन पार्ट ऑफ रेफरेंसेस आता है वो लाइक इन मक्का, मदीना, फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी और हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान में आएगा. ठीक है, बिकॉज हम इसमें रेफरेंसेस इसलिए ही ज्यादा लिखते हैं बिकॉज ऑलरेडी कुरान के ही पैसेजेस हैं. तो हम कुरान के पैसेजेस में कुरान का ही रेफरेंस लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं. लाइक आयतुल कुर्सी में हम सूरह इखलास की वर्सेस लिख सकते हैं. बट यूजुअली इट इज नॉट एडवाइज्ड कि आप कुरान के पैसेज में ही कुरान का ही रेफरेंस डालना शुरू कर दें. आप बस टू द पॉइंट है, मेन थीम लेके इंपॉर्टेंस लिखें. ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है? इंपॉर्टेंस पर आ जाए. ठीक है, तो अब आयतुल कुर्सी की इंपॉर्टेंस है ये अच्छा, किसी को ये पता है कि आयतुल कुर्सी कौन से सिपारे में हमें मिलती है या कौन सी सूरा का ये पार्ट है? सूरह बकरा. सूर्य बकरा का ये पार्ट है, मेजर पार्ट है सूर्य बकरा का. सो the importance of these themes is that these verses allow Muslims to learn and understand something about God in a way relevant to them. Relevant था, why? Because हमने understand किया कि अल्लाह ताला is ever living, right? उनकी डेथ नहीं होनी, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे. उनकी कोई ह्यूमन क्वालिटीज नहीं है और हमारी ह्यूमन क्वालिटीज है, राइट? तो ये ह्यूमन क्वालिटीज का हमने फर्क से सीखा कि अल्लाह ताला इज वे मोर सुपीरियर. And the theme of God's self-subsistence shows how certain attributes that affect humans do not affect him. For example, sleep, so they can rely entirely to him. He has the knowledge and power over all things, and this could make Muslims more cautious of their practices, and it can be considered as one of the best passages of Quran. अच्छा, ये इसकी बहुत major importance है, right? तो ये आपने लिखना होगा. It can be considered one of the best passages because Allah Ta'ala himself is talking about his kingdom in these ayat al-mubarakah, and Muslims often recite it daily for protection, because like I said, we consider that by reciting Ayatul Kursi we can be in Allah Ta'ala's protection, and we also tend to recite it after our first salah, right? So these are the importances. और ये इनमें आई बिलीव इसमें कोई मसला नहीं है. अगर कोई है या कोई मसला नहीं है तो वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज. आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्लियर है? आगे बढ़ जाए. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इज, अच्छा, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि कुछ पैसेजेस इन दीज सूरास आर वेरी स्मॉल. लाइक सूरह इखलास, इट जस्ट हैज 3 वर्सेस, राइट? तो उसका फिर मेन थीम भी हम उसकी अगर मेन थीम में अगर आपको 2 पॉइंटर भी मिल रहे हैं
तो वो मोर देन इनफ है, बिकॉज वो आपकी कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम में भी उतने ही लिखे हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्ड्स है, आपका जो पैसेज है वो कितना बड़ा है। बिकॉज जितना ज्यादा बड़ा पैसेज होगा उतने ज्यादा जो है वो आप पॉइंटर्स ऐड कर सकते हैं, और अगर छोटा सा है तो फिर उसकी मेन थीम और इम्पोर्टेंस भी बहुत स्मॉल ही आएगी। राइट, तो प्रेफर मैं यही करूंगी कि जो इसमें लिखा हुआ है आप उसी को याद करो, उसी को अंडरस्टैंड करो, ताकि बाय द एंड जब आपके पेपर्स आए तो आपको सारी चीजें याद हो। Okay, Surah Fussilat का main theme is that Allah creates and controls everything. Like I said, because Allah Ta'ala in these verses is talking about, in these themes, He's talking about Himself. He's talking about Tawheed, He's talking about that there's no other God other than Allah Ta'ala. So the main theme of Surah Fussilat as well is that Allah creates and controls everything. In this verse specifically, He mentioned that sun and the moon. So sun and moon are His creations. Is one of the creations, because बहुत सारी creations हैं, but Allah Ta'ala has specifically mentioned in Surah Fussilat about sun and moon, and the order and cycle of the sun and moon are God's sign for humankind. Because दिन होती है फिर रात होती है, तो all of these are working in a cycle, right? ऐसा तो नहीं है कि एक दिन ही रह गया और एक दिन रात ही रह गई, right? हम ही परेशान हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया कि सुबह हम उठे और सन ना आया हुआ, और सुबह जब हम उठे तब भी मून ही हो। तो ये सब अल्लाह ताला के साइंस हैं. And we need to ponder, because Islam is a very practical theme. So we need to ponder, we need to reflect on the signs that Allah Ta'ala has given to us. Like Sayyidina Ibrahim alayhi salam. अगर आप लोगों को सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम की थोड़ी स्टोरी पता है, तो he used to observe things around himself, and then he used to ponder कि क्या ये मेरे गॉड है, या ये मेरे क्या ये जो है वो पूरी दुनिया चला सकते हैं. बट देन ही केम अप विद द एक्सप्लेनेशन कि सन तो एक टाइम के लिए होता है और फिर रात में चला जाता है, फिर मून एक टाइम के लिए होता है, मून सुबह में चला जाता है. तो जो हमारा लॉर्ड है वो इतना इतना इंफीरियर तो नहीं होगा कि वो एक टाइम के लिए हो और अगले टाइम वो ना हो, राइट? तो इस अंडरस्टैंडिंग से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिस्कवर्ड अल्लाह ताला कि कोई ऐसी हस्ती मेरा लॉर्ड है, कोई ऐसी हस्ती इस दुनिया को चलाती है जो हमेशा के लिए होती है, जो टाइम बेस्ड नहीं है कि एक टाइम के लिए वो है और फिर दूसरे टाइम पे वो नहीं है, राइट? सो सूरह फुस्सिलत इज अ वेरी हार्ट टचिंग surah of the Quran, that these are the signs and we need to ponder over them. ये नहीं कि हम जो है वो ये सब हमारा एक पार्ट है, अगर ये सब ना होता तो फिर कैसा होता, राइट? तो हमें हर चीज को सोचना है, हर चीज जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमें उस पर पॉन्डर करना है, हमें उस पर रिफ्लेक्ट करना है, और हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये सब हमारी ब्लेसिंग्स हैं, और ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्रिएट करी है ताकि हम अल्लाह ताला से करीब हो सके, ना कि हम लोगों से और गैजेट से और हमारे जितने भी हमारे इर्द फितनास हैं हम उनसे कनेक्ट करें. And that these are the signs of his power, so only he should be worshipped and no one is equal to him. और इसके बाद ये that sun and moon are not to be worshipped. So the signs of Allah Ta'ala, we cannot worship the signs that Allah Ta'ala has given to us, right? एक साइन तो हमारे पेरेंट्स भी हैं. अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, हमारे लिए दुनिया में आना एक मुश्किल चैलेंज हो जाता. हमारे पास एक सेफ्टी नहीं होती, हमारे पास एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन ना होता अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते. तो ये भी पेरेंट्स भी दे आर अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला. बट इसका ये मतलब नहीं है that we need to worship them. We need to obey them, but we are not supposed to worship any of the signs or any of the blessings that Allah Ta'ala has given to us. ठीक है? सो ये क्यों दिए हैं अल्लाह ताला ने, साइंस क्यों है हमारे पास, ताकि हम रिफ्लेक्ट करें, ताकि हम पॉन्डर करें, क्योंकि ये हमें अल्लाह ताला से करीब लेके जाते हैं, राइट? और ये सब चीजें जो है वो एक साइकिल में है, राइट? तो अगर आप लोगों को बल्कि चले जब आगे इस पे बात करेंगे, बट एक चीज ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये बहुत एक पावरफुल मैकेनिज्म होता है. रोज हमारा सुबह में उठना, हमारी सुबह आंखें खुल जाना इटसेल्फ एक मिरेकल है. बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में सोते सुबह नहीं उठते, राइट? तो जो सुबह नहीं उठे तो उन्होंने क्या रात में सोचा था कि वो सुबह नहीं उठेंगे, उनके तो अपने प्लान्स हो गए, बट वो प्लान अल्लाह ताला के साथ था. तो अल्लाह ताला वंस अगेन ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स. फिर उसके साथ ही कि अल्लाह ताला हैज द एबिलिटी टू चेंज डे एंड नाइट, ही हैज द एबिलिटी टू चेंज द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, राइट? तो ये सारी जो पावर्स हैं, ये सारी सुप्रीम पावर्स, ये सब जो है वो अल्लाह ताला की हैं, एंड we need to be obedient towards Allah Ta'ala. Then इसकी importance पर आ जाए.
The importance is that it creates a strong link with God. So Muslims do not look up to anything or anyone else, famous people, money, etc., and they worship only to Him. And one of the major things is कि because jahiliya का जो time था उसमें sun और moon और idols और इन सब चीजों को worship किया जाता था before prophet, and even in today some religions are following it, but it highly condemns, this surah highly condemns the concept of shirk, that we cannot worship the signs of Allah Ta'ala. We need to reflect over them, but we cannot worship them. So worshipping anyone other than Allah Ta'ala is known as shirk. And Allah Ta'ala has given us signs to invite Muslims towards their environment, to observe, to reflect, to ponder, and to think about the great majesty of Allah Ta'ala. ठीक है? तो why do we have day and night? ताकि हम ये सोच सकें कि powerful mechanisms हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह ताला ही के पास एबिलिटी, बिकॉज क्या हमारे पास एबिलिटी है कि हम सन को बाहर निकाल दें, मून को बाहर निकाल दें? वी डू नॉट हैव दिस एबिलिटी, राइट? हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है कि हम दिन और रात को चेंज कर सकें, हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है कि हम जो है वो मलकुल मौत को ला सकें, राइट? जो हमारा एंजल ऑफ डेथ है, हम किसी को मार जरूर सकते हैं, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं मारने की, कि मैं किसी के पे फायर ओपन कर दूं, बट उसका जो मरना था, उसकी जो डेथ थी, वो अल्लाह ताला ने कैसे उसके ऊपर डेथ लेकर आए? एंजल ऑफ डेथ भेज के, राइट? हम नहीं एंजल ऑफ डेथ ला सकते, हम किसी पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो हमारी फायर से बच जाए, तो हम किसी को ना पैदा कर सकते हैं, ना हम किसी को मार सकते हैं, ना हम दिन और रात चेंज कर सकते हैं, और ना हम किसी को रिस्क प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एफर्ट जरूर डालते हैं रिस्क जमा करने की या रिस्क को गेन करने की, बट उसमें जो उसमें व्हाट डू वी से दैट वर्ड, जो उसमें वो होती है अल्लाह ताला की अगर रजा ना हो तो हमें रिस्क भी ना मिले, ठीक है? तो ये सारे जो साइंस हैं ये हमें वंडर करवाते हैं कि अल्लाह ताला कितने ग्रेट हैं, कितने मर्सीफुल हैं, और ये सब चीजें हमें अल्लाह ताला से करीब लेके जाती हैं। वन थिंग इसमें मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आज आप लोग टेक अवे अपना करना, थोड़ा सा सोचना कि अगर आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है? आपका घर, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास खाने को चीजें, आपके पास हेल्थ है, ये सब चीजें अगर आपके पास हैं, और आप एज अ पर्सन इफ यू आर एरोगेंट और इफ यू हैव इवन an ounce of arrogance in yourself, तो फिर आप एक अच्छी बिलीवर नहीं है, बिकॉज हमारी ब्लेसिंग्स जो हमें अल्लाह ताला ने दी हैं वो अल्लाह ताला से क्लोज होने के लिए दी हैं, अल्लाह ताला से दूर होने के लिए नहीं दी। तो एरोगेंस और अल्लाह ताला से करीब होना, they can never come in the same direction. Arrogance will always take you away from Allah Ta'ala, and humility will always take you towards Allah Ta'ala. तो अगर blessings हैं और even अगर blessings नहीं भी हैं, तब भी you need to only get close with Allah Ta'ala, because He is the creator of you. और अल्लाह ताला जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं उतनी आपसे मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपकी ब्लेसिंग्स अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ लेके जा रही है, then you are in the right direction. बट अगर आपकी ब्लेसिंग्स आपको अल्लाह ताला से अवे लेके जा रही है, then you need to reflect upon yourself. You need to reevaluate yourself कि हमें कौन सी चीज हमारे अंदर एरोगेंस लेकर आती है, बिकॉज एरोगेंस का मतलब क्या है कि वो हमें अल्लाह ताला से दूर लेके जा रही है, ठीक है? एंड शिर्क भी नहीं करना, because shirk is one of those sins which Allah Ta'ala will not forgive until you truly ask for repentance. ठीक है? तो shirk is highly condemned. There is no Lord other than Allah Ta'ala, and it creates awe and wonder to help get closer to Him, and it reminds humankind that He is the creator of all the things. ठीक है? जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब मैं एनाटमी पढ़ती हूँ, एनाटमी में इतनी चीजें हैं, इतने मसल्स हैं, हमारे फेस पे इतने मसल्स होते हैं, एक एक चीज, एक एक आर्टरी, एक एक नर्व, एक वेन सप्लाई, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ क्रिएटिंग इवन वन वेन या नर्व, या हम कोई चीज, एक सेल नहीं डेवलप कर सकते हैं, हम रोबोट बना सकते हैं, बट हम लिविंग बीइंग नहीं बना सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने हमें कितना परफेक्टली इंजीनियर किया है। तो बेसिकली मैं तो एक डेंटल स्टूडेंट हूँ, बट जो हमारे इवन दांत हैं उसकी जो क्रिएशन है, उसके जब हम टूथ मॉडल्स देखते हैं या जब हम उसको एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप,
तो जब उसके अंदर चीजें निकल निकल कर आती हैं, दे कम्प्लीटली लीव मी इन एन ऑ कि ये अल्लाह ताला ने इतने ब्यूटीफुली, इतने कंप्लीट, इतने सुप्रीम तरीके से चीजें हमारे लिए डिजाइन करी हैं। सो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, और हमेशा जो है वो अल्लाह ताला से अर्ज करते रहें, हमेशा दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला मेक मी क्लोजर टू यू एंड ग्रांट मी योर लव and love of those things which will make me closer to you. तो इंशाल्लाह with this being said, हमारा टाइम यहाँ conclude हो रहा है, तो we'll complete 3 passages tomorrow, Surah Ikhlas, Surah Shura and Surah An'am. We'll complete these 3 passages tomorrow inshallah, and with this being said, we'll call it a day. And take care. Jazakallah khair for joining, and we'll share the timetable with you guys tomorrow for tomorrow's class in a while. Okay? Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz.